وزیر اعظم عمران خان نے سابق GGFI کے الزامات کی بنیاد قرار دے دیے. کہا بشیر میمن سے فائز عیسیٰ کے خلاف کبھی مقدمات بنانے یا تحقیقات کا نہیں کہا. ریفرنس فائل کرنے کا کام بشیر میمن کا تھا ہی نہیں تو ان سے کیوں کہتے. مریم نواز نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنانے کا بھی کبھی نہیں کہا. خاتون اول کی تصویر کے معاملے میں مریم نواز پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کی کبھی بات نہیں کی. سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ بشیر میمن اومنی گروپ کے JIC میں پیش رفت پر بریف کیا کرتے تھے. ان سے صرف خواجہ آصف کے اقامے کے معاملے پر تحقیقات کرنے کا کہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ اور دفاع غیر ملکی اقامہ اور تنخواہ لیتا ہو. میں گھر رہو محفوظ رہو. تفریحی مقامات پبلک پارک شاپنگ مالز 8 سے 16 مئی تک بند رہیں گے. صوبوں کے درمیان شہروں کے درمیان اور شہروں میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی. عید الفطر پر سرکاری چھٹیاں 10 سے 15 مئی تک ہوں گی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے پیش نظر پاکستان آنے والی مسافر پروازوں کو کم کرنے کا فیصلہ. پاکستان آنے والی مسافر پروازوں کو 5 سے 20 مئی تک کم کیا جائے گا. NCOC اجلاس میں 40 سے 49 سال تک کی عمر کے افراد کی 3 مئی سے ویکسینیشن کا فیصلہ. 6000 میٹرک ٹن آکسیجن کی درآمد کا اجازت نامہ منظور. اگر ہم نے یہ اس وقت اوور آل شرح ہے وہ تقریباً 11.5% کے اوپر ہے. اگر یہ شرح بڑھ کر 14% یا 15% پہ چلی گئی تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا اس کے علاوہ کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. اگر ملک میں کورونا کیسز کی شرح 15% تک گئی تو لاک ڈاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے خبردار کر دیا. پنجاب کابینہ نے زیادہ متاثرہ شہروں کے فوری مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی. NCOC کو سفارش کرنے کا فیصلہ. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 151 افراد جان سے گئے. مزید 5480 افراد میں وائرس کی تصدیق. ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 10% رہی. کوئٹہ میں شرح 19% تک پہنچ گئی. بلوچستان میں تقریباً 20%. لاہور میں 14%. پنجاب بھر میں 10% ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد میں شرح 9% ریکارڈ کی گئی. ملک بھر میں 6 سے 89 مریض وینٹیلیٹرز پر زیر علاج. ووٹوں کی گنتی جاری. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے مفتاح اسماعیل کو برتری حاصل. کراچی کے حلقہ NA 249 کے ضمنی انتخاب میں دن بھر پولنگ کے بعد اب گنتی کا عمل جاری. پولنگ کے آغاز میں بزرگ شہریوں سمیت ووٹرز کی معقول تعداد نظر آئی, لیکن جیسے جیسے سورج چڑھتا گیا ووٹرز کا تناسب ڈھلتا گیا. پولنگ کی شرح معمول سے کم دکھائی دی. فیصل وابڈہ کی خالی کردہ اس نشست پر تحریک انصاف کے امجد اقبال آفریدی, مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل, پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل, پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال اور MQM پاکستان کے حافظ محمد مرسلین سمیت 30 امیدوار میدان میں ہیں.
दौरान मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों में आने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। PTI के रुकन असेंबली फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर, बिलाल गफ्फार समेत 6 अरकान को हल्के से फौरी निकलने का हुक्म। डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर का पुलिस को खत। अरकान असेंबली को हल्का बदर करने और अरकान असेंबली सेनेटर्स या वज़रा को हल्के में न आने देने की हिदायत। एक पोलिंग स्टेशन पर MQM और पाक ज़मीन पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के तारिक हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत इल्जाम लगाया कि खवातीन वोटर्स को बल्ले पर मोहर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये भी कहा कि पोलिंग स्टेशन A1 स्कूल में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होते हुए पुलिस ने 50 मर्द वोटर्स को दाखिले से रोक दिया। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद। गर्मी, रोजा और कोरोना। कराची के हल्का NA 249 में रिवायती इंतखाबी रंग नजर न आया। न वोटर की भरमार, न सियासी कारकुनों की तकरार, न जोशो वलवला। वोटर भी ठंडे, सपोर्टर भी ठंडे। पोलिंग का ज्यादातर वक्त मौसम बेहतर होने के इंतजार में ही गुजर गया। दिन के पहले सेशन में सीनियर सिटीजन ने तो हिम्मत की और बाहर निकले, लेकिन नौजवान तबका पोलिंग स्टेशन पर कम ही दिखाई दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है, ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का तनासुब कम रहा। गर्मी भी बहुत है और कोरोना भी, लेकिन बल्दिया के बुजुर्ग शहरी निकल पड़े हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वोट पड़ेगा तो मुल्क बढ़ेगा। वोट का तनासुब है वो बहुत ज्यादा कम है। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं NA 249 में। BSP और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अगर वोट मिलाएं तो वो पीपल्स पार्टी और PMLN को बीट करते हुए दिखाई देते हैं। किसी एक पोलिंग स्टेशन पे भी 100 वोट नहीं पड़े और इस एक स्कूल में 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जहां जहां वोटर्स वहां जियो न्यूज के रिपोर्टर्स। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा आने तक NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज पर। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम, तज्जियाकारों के साथ पल पल की खबर सिर्फ जियो न्यूज के पास। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म के साथ एक और खतरनाक वायरस भी सामने आ गया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का इंकशाफ कराची समेत सिंध में लोगों के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कल 30 अप्रैल से सूबे में शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस बंद। हुकूमत ने दीगर सूबों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला मना कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7% है। एक हफ्ते में हैदराबाद में 20, कराची में 11 और सक्खर में शरह 8% रही। मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। जो निजी दफातर स्टाफ कम करने के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, उन्हें सील कर दिया जाए। हैदराबाद में कोरोना से सूरत हाल खतरनाक। शहर के अस्पताल कोरोना मरीजों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर। सहूलियात से महरूम। लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कोरोना वार्ड में 36, जामशोरों में 26 मरीज दाखिल, मजीद 12 दाखिले के मुंतजर। लतीफाबाद के 5 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन है न वेंटिलेटर। DHO का कहना है कि फिजाई अस्पताल, कोहसार अस्पताल, गवर्नमेंट फरीदाबाद अस्पताल में ICU वार्ड ही नहीं। कोशिश है कम अज कम शहरियों को ऑक्सीजन ही मिल जाए। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 20%। खराब सूरत हाल के बावजूद SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का हुकूमत से जंगी बुनियादों पर मुल्क भर में वैक्सीन की फराहमी का अमल शुरू करने का मुतालबा। पार्टी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, हर महाज पर नाकाम हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने में संगीन बदइंतजामी से कौम की इज्तिमाई जिंदगी खतरे में डाल चुकी है। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी और शहरियों को वैक्सीन की बर वक्त फराहमी होती तो इस हलाकत खेज वायरस को फैलने से रोका जा सकता था। अस्पतालों का निजाम भी अफरा तफरी का शिकार है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। NCOC पेशबंदी न कर सकी। इमरान खान नियाजी अपने फलसफों में वक्त बर्बाद न करते, तैयारी करते तो आज अमवात 200 तक न पहुंचती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पिछले 1 साल में तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। पाकिस्तान का असासा मईशत को उठाने वाले समंदर पार पाकिस्तानी हैं। सफारतखानों का सबसे अहम फरीजा पाकिस्तान के मजदूर तबकों का ख्याल रखना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने ने मेहनत कशों का ध्यान नहीं रखा। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीर से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमारा अलमिया है कि किसी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की, न एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जोर लगाया,
यही मुल्क के आगे बढ़ने की राह में रुकावट बना। 30 साल में 20 मरतबा IMF के पास जाना पड़ा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है, इत्तेहाद बरकरार है। ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। PDM में अब नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफे मंजूर नहीं किए। दोनों जमातों के लिए इत्तेहाद में शमूलियत में कोई रुकावट नहीं। अगर पीपल्स पार्टी मौके तस्लीम कर ले तो सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर सकते हैं। जो वजाहत तलब की थी वो दे दें तो मामलात आगे चल पड़ेंगे। चीनी स्कैंडल केस FIA की खुसूसी टीम ने जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे का अज़्ज़र-ए-नौ जायजा लेना शुरू कर दिया। टीम केस के मेरिट, डीमेरिट, तहकीकात का मयार, शवाहिद का अज़्ज़र-ए-नौ जायजा लेगी। टीम शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ चीनी स्कैंडल केस में दर्ज FIR का भी जायजा लेगी। टीम चीनी स्कैंडल केस में दरकार कानूनी मुशावरत के लिए बैरिस्टर अली जफर की खिदमत हासिल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात जरूर होंगी। एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते, चाहे पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ही क्यों न हो। जहांगीर तरीन के मामले पर मिलने वाले वक्त ने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। हुकूमत ने फैसला किया कि जहांगीर तरीन का मामला बैरिस्टर अली जफर देखेंगे। यकीनी बनाएंगे कि जहांगीर तरीन को नाजायज निशाना न बनाया जाए। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को नहीं हटाया गया। अबू बकर खुदाबख्श को शुगर स्कैंडल तफ्तीशी टीम का हिस्सा बना दिया गया है। जाली बैंक अकाउंट के जरिए 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस इस्लामाबाद की हिसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 20 मई को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। कलादम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। कलादम तहरीक लब्बैक की दरखास्त का जायजा लेने के लिए कल वजारत दाखिला में इजलास तलब कर लिया गया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुसलसल दूसरे रोज 1 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी हौसला अफजा है। TIA का खुसूसी गैरा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। 3 तैयारियों के जरिए वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। Taking a good catch, Brendan Taylor. Edge taken. Bowled him. Halfway to the boundary. Full and bowled. Ball in, clean him up. Shaheen Shah Afridi on the top of his game. 4th wicket for Shaheen Shah Afridi. शाहीन आफरीदी और हसन अली के 4 शिकार। हरारे टेस्ट के पहले दिन 3 पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन पर समेट दी। जवाब में आबिद अली और इमरान बट ने टीम का स्कोर 103 रन तक पहुंचा दिया। खेल के अख्ताम पर आबिद 56 और इमरान 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान की हलाकत का मामला मशकूक हो गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जहां भाग अफराद के लवाहिकीन ने मैयतों के हमरा धरना दिया। पुलिस की शेलिंग। ज़ाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। कराची में अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 103 से 115वें नंबर पर आ गया। फेरिस में वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस का पहला नंबर, काबुल 14वें, ढाका 43, ह्यूस्टन 52, दिल्ली 82, वाशिंगटन 88 और बेंगलोर 108वें नंबर पर मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने पर फ्रॉड के मुलजिम की फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को प्रॉपर्टी फ्रॉड के केस में अदालत में पेश किया गया था।
मुल्तान के ट्रस्ट अस्पताल में 16 अफराद के ऑपरेशन के बाद बीनाई खत्म होने की तहकीकात मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद। डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक सील। सर्जन डॉक्टर हसनैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़। वफाकी काबीना में 3 नई तकर्रुरियां। रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत व नशरियात मुक़र्रर। उस्मान डार दोबारा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए खजाना और रेवेन्यू मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद इससे कबल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है सऊदी अरब ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सऊदी अरब ईरान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहता। सऊदी अरब और ईरान के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के ईरान से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम। कहा ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी और सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन के लिए उठाया जाने वाला ये कदम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी कोरिया के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनूबी कोरिया के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग चाहते हैं। मुलाकात के दौरान खत्ते में अमन सलामती समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग का इरादा। जनूबी कोरिया के सफीर ने खत्ते में अमन सलामती और अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। PTI गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में लैपटॉप के इस्तेमाल पर फैसला न हो सका। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 3 मई को दोबारा तलब। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने लैपटॉप की इजाजत नहीं दी। अगर PTI फॉरेन फंडिंग केस के एहतसाब का अमल वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान में ये क़यादत सामने न आती। पाकिस्तान बार काउंसिल का इंसाफ की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सराहा गया। कहा गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का रास्ता मुतय्यन करेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मोहम्मद फ़हीम वली की ज़ेर सदारत इजलास। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान की खुसूसी शिरकत। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ माफियाज और गठजोड़ को मजबूत करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। पाकिस्तान को IMF की क्लाइंट रियासत बना दिया गया है। मौजूदा माली साल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जुलाई से मार्च तक कम होकर 1.3 अरब डॉलर रह गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला और स्पीकर ने इत्तेफाक किया कि कोरोना खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है, सख्त इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड की तादाद बढ़ाई जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इदारों को मुतहर्रिक किया जाए। कोरोना की सूरत हाल को रोजाना की बुनियादों पर मॉनिटर करके फैसले किए जाएं। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की कोरोना वायरस से निजात के लिए जुमे को यौम दुआ मनाने की अपील। कहा हुकूमत ने इत्तेकाफ पर बैठने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा SOPs पर अमल मसाजिद में हो रहा है। गुजारिश है कि जुमे की नमाज अदा करने जाएं तो SOPs पर अमल करें। जर्मनी के वजीर खारजा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान वज़ारत खारजा में मुलाकात। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखेगा। मुलाकात में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इंखला के ऐलान के बाद पैदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश। कहा कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दे, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। तालिबान ने अफगान रहनुमाओं को खत में बराह रास्त बातचीत का मुतालबा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का कहना है कि हासिल सेक्टर में बैंक साल से 150 अरब रुपए कर्ज दे रहे थे, अब 200 अरब रुपए कर्ज दे रहे हैं।
عام آدمی کو موقف سبسڈی وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق دی جا رہی ہے. روشن برانڈ کے تحت اپنی کار ایک اہم منصوبہ ہے. اوورسیز پاکستانی باہر سے بیٹھ کر گاڑی خرید سکتے ہیں. کورونا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کا عید الفطر پر نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ. گزشتہ سال بھی کورونا کے پیش نظر نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے گئے تھے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے پہلے پہلا خطاب. کہا افغانستان سے فوج واپس بلانے کا یہی وقت ہے. امریکہ پھر سے آگے بڑھ رہا ہے. دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے. چین کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. روس سے کشیدگی بڑھانے کی خواہش مند نہیں. امریکی صدر کا جاب پلان کے تحت لاکھوں نوکریاں پیدا کرنے کا اعلان. کہا 16 برس سے بڑی عمر کا ہر امریکی ویکسین لگوا سکتا ہے. Thank you all, Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time. امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس اور ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے کانگریس کی مشترکہ اجلاس کی صدارت کر کے امریکہ کی 250 سالہ سیاست میں نئی تاریخ رقم کر دی. صدر جو بائیڈن نے بدھ کی شب کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کیا تو اس موقع پر ان کی پشت پر موجود نشستوں پر پیلوسی اور ہیرس براجمان تھی. پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو کورونا سے نمٹنے کی کوششوں میں مدد کی پیشکش کر دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کو فوری طور پر وینٹیلیٹر ڈیجیٹل ایکس رے مشین دینے کو تیار ہیں. دفتر خارجہ کا بھارتی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں کی صحت سے متعلق بھی تشویش کا اظہار. اطلاعات کے مطابق بھارتی جیلوں میں موجود کچھ کشمیری رہنما کورونا میں مبتلا ہیں. کہیں بھی پورے دلی میں آکسیجن نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ پرسکرپشن لے کے میری ممی بہت سیریس ہے. اور لوگ 2 دن سے پورے دلی کے ہاسپٹلوں میں بیڈ ٹرائی کر رہے ہیں. بھارت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا کی ہلاکت خیزی بڑھنے لگی. ایک روز میں 3,80,000 مریض سامنے آئے. 3,600 جان سے گئے. دلی کے بعد اب ممبئی کے اسپتالوں میں بھی مریضوں کے لیے بستر کم پڑ گئے. پورے شہر کے اسپتالوں میں صرف 51 ICU بیڈز اور 19 وینٹیلیٹرز باقی رہ گئے. طبی ماہرین نے صورتحال کو بھیانک قرار دے دیا. مختلف ریاستوں میں ایمبولینس کی کمی نے لوگوں کو لاشیں کندھوں پر اٹھا کر شمشان گھاٹ لانے تک مجبور کر دیا. برطانیہ کا بھارت کو 3 موبائل آکسیجن فیکٹریاں دینے کا اعلان. روس کی بھیجی گئی طبی امداد بھی نئی دلی پہنچ گئی. فیس بک نے #ریزائن مودی سے کی گئی پوسٹیں چند گھنٹوں تک چھپا دی. انٹرنیشنل میڈیا پر خبر آنے کے بعد فیس بک نے اپنے اقدام کو غلطی قرار دیتے ہوئے #3 گھنٹے بعد بحال کر دیا. امریکہ نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد بھارت چھوڑنے کی ہدایت کر دی. ٹریول ایڈوائزری میں امریکی شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ملکوں سے قطر آنے والوں کو 10 روز آئسولیشن میں رہنا ہوگا. قطر نے 6 ملکوں کے شہریوں پر ہیلتھ آئسولیشن کی پابندی عائد کر دی. کورونا وبا کی بعد پہلی بار آج سے ترکی میں مکمل لاک ڈاؤن. بھارتی قسم کے 5 کیس ترکی میں بھی سامنے آ گئے. امریکہ میں جارج فلائیڈ کے قاتل سابق پولیس اہلکار کو سزا سنائے جانے کے بعد ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. پولیس آفیسر کے تشدد سے ایک اور شہری جان سے گیا. پولیس اہلکار 5 منٹ تک 26 برس کے ماریو گونزالس کی گردن پر گھٹنا رکھے بیٹھا رہا. گونزالس 4 برس کے بچے کا باپ معذور بھائی کا واحد کفیل تھا. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں کلینک پر حملے میں 4 افراد ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. پولیس نے کلینک کے ملازم کو حملہ کرنے کے شبے میں گرفتار کر لیا. 4, 3, 2, 1, all engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. Roger. We're seeing the
चांद पर पहले इंसानी मिशन अपोलो 11 के अमले में शामिल माइकल कोलिंस चल बसे। 90 साल के कोलिंस कैंसर में मुब्तला थे। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन की चहलकदमी के वक्त कोलिंस मदार में थे। Invite to point all the way in. A freak of such extreme value. It's Morris. Oh, it's a beauty. He has fisted in for Manchester City. चैंपियंस लीग फर्स्ट लेग सेमीफाइनल में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने पैरिस सेंट जर्मेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मेरी गाल से सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा। मेरी लाते हैं पतली, मैं नाचे जाऊंगा। हकीम जी अब मैं ਤੁਹਾਡੇ हाथ पे जोड़ता जे ए सजा याफ्ता जे इन निकाह याफ्ता ना करना जे तुम तबाह याफ्ता हो जाओगे। गुड़िया जा पानी, गुड़िया जा पानी, गुड़िया जा पानी, गुड़िया जा पानी। और बेसाख्ता अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। कमेंट्री तो जम के करता है पर